नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं मुताबिक हुसैन। बुलेटिन में शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के चीन दौरे की। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक नया इतिहास रच रहे हैं और पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से स्वागत किया है और इतना वक्त उनको दिया है। इतने लंबे वक्त के लिए अनौपचारिक मुलाकात की है। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं हम। आज की जो अपडेट्स आए हैं निकलकर पीएम मोदी के चीन दौरे से, वो आप 3 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले लेक के किनारे, ईस्ट लेक जो वहां पर है, वहां के किनारे चहलकदमी करते हुए दोनों नेता नजर आए। उसके बाद चाय पर चर्चा की गई और उसके बाद नंबर आया बोट डिप्लोमेसी का, जहां पर जो लेक है उसके अंदर बोट के अंदर बैठकर दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। तमाम पहलुओं पर वहां पर बात की गई। हालांकि अनौपचारिक मुलाकात थी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की यह मुलाकात तो अनौपचारिक थी, लेकिन कारोबार, आतंक और सीमा सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर यहां पर सहमति बनी है। भारत के विदेश सचिव विजय केशव गोखले ने इन सहमतियों के बारे में बताया। Leaders were not going to get into the specifics of such issues, but when you talk of takeaways, I think the important takeaways here are that this kind of arrangement between the two leaders of informal meetings where they discuss issues of common interest will continue. I believe you heard the Chinese president yesterday when he said that he looked forward to maintaining such contact subsequently. And the other important takeaway is the agreement between them that greater strategic communication at the leadership level and at the level of the two governments allows for a free and frank discussion on all matters of interest. I believe to that extent these are important takeaways. In addition, of course, both leaders also decided that the existing mechanisms would be improved, they would be made more effective, they would be made more efficient, and through these mechanisms we would address some of the issues that you have. On the issue of the India-China boundary question, the two leaders endorsed the work of the special representatives in their efforts to find a fair, reasonable and mutually acceptable settlement. And the two leaders also underscored that in the meantime, it is important to maintain peace and tranquility in all areas of the India-China border region. And to this end, the two leaders decided that they would issue strategic guidance to their respective militaries to strengthen communication, to build trust and understanding, to implement various confidence building measures which have already been agreed upon by the two sides, and to strengthen existing institutional mechanisms to prevent and manage situations in the border areas. Bilateral trade and investment formed an important part of the discussion. The two leaders underlined that trade should be balanced, it should be sustainable, and that we should take advantage of the complementarities between the two economies to enhance our trade and investment. In that context, the Prime Minister also mentioned the importance of balancing trade and spoke of the possibilities of agricultural exports and pharmaceutical exports to China. And it was decided that through the existing institutional mechanisms, both sides would continue to discuss matters relating to trade and investment. I would like to repeat the proposals included moving ahead in trying to find ways to collaborate in the areas of spirituality, trade, technology, tradition, in terms of building relationships, in terms of entertainment including films. And here President Xi Jinping actually said that he had seen a number of Indian films, both Bollywood and regional, and that it would be a good idea to expand this, that more Indian films should come to China, more Chinese films should go to India. राहुल सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। राहुल सिन्हा, ये अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन दोनों देशों के बीच मुद्दों को लेकर यहां पर सहमति भी बनी है। आप वहां पर मौजूद थे, आप इस पूरी दौरे को पीएम मोदी के कवर कर रहे हैं। कुछ संदेश निकल कर आया है इस दौरे से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई है
पिछले 2 दिन के अनौपचारिक तौर पर जिसे कहा जा रहा था, उसमें तमाम औपचारिक मुद्दों पर बातचीत की गई। खासतौर से सीमा विवाद, जो कि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है तनाव का, उसको लेकर के भी चर्चा की गई और एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात की गई। दोनों देशों के नेताओं ने इस बात को माना कि बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को इस तरीके की साझेदारी करनी चाहिए और इस तरीके का मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि तनाव न फैले। तो निश्चित तौर पर यह खास बात है, चूंकि हर किसी की नजर इसी बात को लेकर के थी डोकलाम विवाद के बाद कि क्या इस मुद्दे पर दोनों देश आमने सामने बैठते हैं और कुछ रास्ता निकालते दिखते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के बाद से निश्चित तौर पर कम से कम बॉर्डर में तनाव कम करने को लेकर के कुछ रास्ते जरूर निकलेंगे। कई और अहम मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई, जिसमें ट्रेड प्रमुखता से रहा। भारत ने भी अपने कंसर्न रखे फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में कि उसको एक रास्ता चाहिए थोड़ा सा, तो दोनों तरफ से बातें की गई। कल्चरल एक्सचेंज की भी बात की गई। प्रधानमंत्री से शी जिनपिंग ने कहा भी कि उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं, एंटरटेनमेंट के में कोलैबोरेशन की बात हुई, भारतीय फिल्मों को यहाँ लाने की और यहाँ की फिल्मों को भारत में ले जाने की, डिजिटल में भी एक दूसरे को सहयोग करने की, उसको एम्पावर करने की बात की गई। तो कुल मिला करके वो छोटे छोटे इश्यूज भी हैं इसके अंदर, जिससे दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा सहयोग बढ़ सके और वो तमाम बड़े मुद्दे भी इस बातचीत में रहे जो हमेशा से भारत और चीन के संबंधों को तनाव की तरफ ले जाते हैं। तो उम्मीद हर कोई यहाँ जाहिर कर रहा है कि प्रधानमंत्री जो अनौपचारिक तौर से अचानक यहाँ पर पहुंचे थे, महीने बाद जब औपचारिक तौर पर यहाँ पर आएंगे तो शायद कुछ एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिले, कुछ जॉइंट स्टेटमेंट आपको देखने को मिले, अगर ये दोनों नेता अलग से आपस में फिर से एक बातचीत करते हैं। चीन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति। और दूसरी खबर जो सूत्रों के मुताबिक है वो है अफगानिस्तान में भारत और चीन का साथ काम करना। अफगानिस्तान में भारत और चीन के साथ काम करने की खबर सूत्रों के मुताबिक ही है और उसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों में अफगानिस्तान के आर्थिक परियोजना में साथ काम करना तय हुआ है और यह खबर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए परेशान करने वाली है। चलिए, शुक्रिया रजत आपका भी इस सब जानकारी के लिए। मारुति